So once again, I Kalpesh Vyas welcome you all into this channel and आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो एक ऐसी मदर के साथ है जो बिग फोर में यानी कि डेलॉयट एक बहुत ही बड़ी कंपनी जो है उसमें काम कर चुकी है एंड शी इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 8+ years. अगर एजुकेशन की बात करें देन शी इज बीटेक एंड एमबीए. But since last 3 years, she's into the parenting coach thing. Okay, she's a certified parenting coach, and वो काफी अच्छी तरह 1-to-1 सेशंस में as well as ग्रुप कोचिंग में पेरेंट्स को ये समझाती है कि उसको अपनी जो पेरेंटिंग जर्नी है वो कैसे कंडक्ट करनी चाहिए. बहुत सारे जो मिथ्स हैं उसको वो बस्ट करती है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जो कोची है उसके लिए, राइट. एंड शी इज डूइंग अ वंडरफुल फैबुलस जॉब. सो हमारी जो आज की पेरेंटिंग मेंटर है शी इज कीर्ति एस गुप्ता. So I would like to welcome Kirti into this session, and let's just start with the session and let's understand what is exactly the parenting and what is the idea of parenting. वो किस तरह से parenting होना चाहिए, बच्चों को कैसे grow करना चाहिए, बच्चों की development कैसे होती है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं कीर्ति से इस सेशन में. So let's begin. Welcome to this wonderful channel. Welcome to this video and welcome for this interview. I Kalpesh Vyas would like to ask you some questions regarding the parenting. And yeah, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि what is parenting according to you? What do you mean by parenting? Thank you, Mr. Kalpesh, and thank you, Spartan Kids, for inviting me on this platform. And it's been an absolute pleasure. I have seen your videos and the work you've been doing. It's great. आप जो information parents तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक माध्यम है कि हम ये बहुत सारे educated parents जो आजकल के हैं उनको aware कराएं कि parenting के क्या tips and tricks हैं. So according to me, so let me just can I give a small introduction? Definitely. Yes. You can definitely. We have already captured your, introduction and all. But yeah, you can say from your mouth. It will be, great. Sure. So I am Kriti Gupta, and I have been an ex-working professional. I was working with Deloitte for the past 8 years. और पिछले 3 years से मैं as a parenting coach I'm working mostly freelance. And why 3 years? Because I have a son. 4 साल का मेरा बेटा है. So इस journey में मुझे बहुत कुछ learn करने के लिए मिला. And इस पूरे research में, इस journey में जितना मैंने अपने बच्चे को सिखाया उससे ज़्यादा मैंने as a mother सीखा है. So that is why जो भी मेरे challenges रहे हैं, whatever learnings I have taken from this journey, I want to share it with other parents. That is it. So when we talk about parenting, what is parenting? According to me, parenting is not it's not a very heavy burden. It is not a fight. अपने बच्चे के साथ कोई fight नहीं है और कोई आप किसी authoritative position में भी नहीं है कि मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ और बच्चा छोटा है तो उसको मेरी सब बात सुननी ही चाहिए. जैसे हम थोड़ा सा एक डर के रहते थे अपने पेरेंट्स से, थोड़ा सा हम कम शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से क्योंकि हम थोड़ा सा डरते हैं कि मम्मी है, पापा हैं, हम सब कुछ नहीं शेयर कर सकते हैं, हमें डांट पड़ेगी या ऐसे. बट आजकल पेरेंटिंग वो नहीं रही है. इट्स नॉट द सेम. Parenting is literally a bond between parents and the child. Both of them are raising each other actually. So it's not कि हम किसी position में है कि हम उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे या फिर उन्हें सिखाना है, डांटना है. It's not that. According to me, it's a learning process. And हम एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं जिस तरीके से हम एक पौधे को बड़ा करते हैं, एकदम हर चीज उसे प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से एक बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके और बहुत सारे इनपुट्स, इंफॉर्मेशन, इनपुट्स ये सब प्रोवाइड करके हम जिस तरीके से एक ह्यूमन को रेज कर सकते हैं, दैट इज पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू मी. Wonderful. And with this explanation, I would also like to mention something which click into my mind right now. कि जैसा ही आपने बताया ना कि parenting is not about we are into the authoritative position और हम जैसे बोले वैसे ही बच्चों को करना है. I have read one of the parenting mentor, Mr. Manoj Lekhi. He has wrote a wonderful book named as My Child, My Guru. Oh. That book has completely opened my mind. Okay, and I got to understand that जैसे ही हम parent बनते हैं
हम अपने बच्चों से अपने बारे में ज्यादा सीखते हैं. एब्सोल्युटली, एकदम Yes, and एकदम। that's what you just mentioned in your own words. यस यस, एक्चुअली। सो जब से आई हैव बिकम अ मदर, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या क्या करने के लिए केपेबल हूँ। तो मेरे बच्चे ने मुझे इतने लिमिट्स तक एक्चुअली मुझे पुश किया है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू एनीथिंग एज अ मदर। एज पेरेंट्स हम नहीं जानते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कितना कर सकते हैं। तो एक्चुअली दैट फ्रेज माय चाइल्ड माय गुरु इज एक्चुअली वेरी एप्ट। ये Yes, पेरेंट्स exactly. की होनी ही चाहिए कि आप एक दूसरे से सीखें। इट्स नॉट Wonderful. कि वो बच्चा छोटा है, एज में जरूर छोटा है, आप इसे सिखाना है, बट उसे डांट के मार के नहीं सिखाना है। Yes, as you just said, child is always pushing your limits. So that's why, मतलब पेरेंटिंग में यूजुअली हमने ये देखा है कि भाई जो मदर्स है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहती है बच्चों के साथ, वो सारी चीजें करने के लिए जो बच्चों के लिए जरूरी है, और जो फादर है वो कम इन्वॉल्व होते हैं. यूजुअली ऐसा देखा गया है. एंड दैट्स वेयर वी आर सीइंग दैट इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ वुमन कि वो मल्टीटास्कर होती है, बिकॉज she is used to get her comfort zone pushed out of the comfort zone due to her child. So I totally understand whatever. I totally resonate with your thoughts actually. Absolutely. Thank you. And yeah, as you just mentioned कि भाई parenting के लिए coaching, and you are also a certified parenting coach, right? So I would like to ask you that why it is required for parents to have a coach, और आज एजुकेशन, पेरेंटिंग के बारे में एजुकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज मतलब फ्रॉम एजेस एंड एजेस पीपल आर डूइंग दिस थिंग, मतलब बच्चों को रेज करना सब लोग कर रहे हैं, राइट? बहुत सालों से, 10,000 15,000 सालों से कर रहे होंगे, राइट? इवन दो टुडे वी नीड द मोस्ट, as far as I understand, we need the most the education about the parenting, and why so? That's what I want to know from your end. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली पेरेंटिंग कोचिंग अभी भी उतना कॉमन नहीं है आजकल के भी जमाने में, क्योंकि हमारी दादियां नानियां हमारे पेरेंट्स हमसे यही कहते हैं कि ये क्या एक नया चीज है कि पेरेंटिंग कोचिंग क्या होता है, मतलब हमने बच्चे पाले हैं, हमसे पूछ लो कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो विच इज फाइन एक्चुअली। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो सदियों से हो रही है ऑब्वियसली। बट हम अगर किसी काम को करने जा रहे हैं, कोई भी काम हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप कोई नया सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हो, टाइपिंग भी लर्न कर रहे हो, तो एक ट्रेनिंग होती है, राइट? एक जॉब पे आप जा रहे हो तो एक ट्रेनिंग है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट जॉब है, मतलब ये शायद वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है कि आप एक बच्चे को रेज कर रहे हो, एक ह्यूमन को रेज कर रहे हो। तो हम एक उसी मिथ्स पे और उसी एक प्रोसीजर पे नहीं चल सकते, बिकॉज थिंग्स आर इवॉल्विंग। ओके, तो बहुत सारे मिथ्स हैं बच्चों को रेज करने के लिए, ठीक है? जो हमारे पेरेंट्स शायद करते थे, वो उस टाइम एजुकेटेड उतना नहीं थे, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से सीखा कि ऐसे ही करते हैं। बट अब इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना रिसर्चेस हो चुकी हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बच्चों के साथ नहीं भी करनी चाहिए उन्हीं के बेटरमेंट के लिए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी को हमारे यहाँ इंडिया में मोस्टली ये ट्रेडिशन है कि हम हनी टेस्ट कराते हैं, शहद टेस्ट Exactly. कराते Yes. Yes. हैं, कि वो शुभ होता है, या मीठा है तो शुभ होता है, या फिर उसका फर्स्ट चीज होनी चाहिए। नहीं पेरेंट्स जानते हैं, हमसे जस्ट ऊपर की जनरेशन के पेरेंट्स ही नहीं जानते हैं कि हनी एक्चुअली फेटल होता है, जानलेवा हो सकता है अगर 1 ईयर से कम के बच्चों को दिया जाए तो, क्योंकि उसमें एक पैरासाइट होता है, वो बॉट्यूलिज्म करके एक डिजीज है जो कि वो कॉज कर सकता है और आपका बच्चा पैरालाइज हो सकता है। Oh. यस, सो ये हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वी वर नॉट अवेयर, राइट? तो हमने अब आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सो व्हाई नॉट बिकम अवेयर, व्हाई वी हैव टू। हमारी दादीज नानीज हमारे पेरेंट्स काफी चीजें सही भी करते थे, तो हमें वो सब चीजें पिक करनी है, बट साथ ही साथ इवॉल्व भी करना है। और जहाँ ये आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एक जॉइंट फैमिली में, कि भाई जब ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में रह रहे हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं ये सही है कि ये सही है। तो आपको सबसे ज्यादा उसको डील करने के लिए एक ये चीज चाहिए कि आपको उनकी बातें भी सुनिए, मानिए, जो चीजें आपके बच्चे को हार्म नहीं करें, बट जहां बच्चे को हार्म कर रही है चीजें, उनसे पोलाइटली समझाइए उन्हें कि
हमारे डॉक्टर ने ऐसा कहा है, सबसे पहले तो आप डॉक्टर की बात सबसे पहले सुनिए, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड पीडियाट्रिशियन एक हैं जो पढ़ाई करके आए हैं और जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पेरेंट्स से भी मेडिकल टर्म्स में ज्यादा ही जानते हैं। तो इसलिए ये एजुकेशन की जरूरत है, इसीलिए ये अवेयरनेस की जरूरत है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम नहीं पता था कि क्या 6 महीने का बच्चा अपने आप से खाना खा सकता है, वो खा सकता है, आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो खा सकता है। मैंने अपने बेटे के साथ 2 महीने का था वो, तब से मैंने उसे बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो मेरे को ये क्वेश्चंस मुझे आते थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे कोई भी बुक देखेगा, आप नहीं जानते उसके बेनिफिट्स कि एक बुक अगर आप एक 2 महीने के बच्चे को 3 महीने के बच्चे को दिखाएं तो उसके कितना कोऑर्डिनेशन एंड अवेयरनेस बढ़ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो पेरेंट्स अनअवेयर हैं, इसीलिए ये कोचिंग की जरूरत है। एग्जैक्टली सो मैं थोड़ा सा समअप करना चाहूंगा। पहली चीज तो काफी सारे ऐसे मिथ्स है जो पहले लोगों को ऐसा लगता था कि ये करने चाहिए, बट वो सही में सही नहीं थे। फर्स्ट थिंग, दैट इज द रीजन यू नीड द पेरेंटिंग कोच। सेकंड इज, ये टाइम जो है वो पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग था। सिचुएशन पहले कुछ अलग थी, अभी कुछ अलग थी, अलग है। तो उसकी वजह से हमें इवॉल्व करना चाहिए पेरेंटिंग। तो किस तरह का इस टाइम में, इस सिचुएशन में होना चाहिए। जैसे कि पहले डिजिटल मीडिया वगैरह नहीं था। राइट नाउ इट इज लॉट ऑफ डिजिटल मीडिया अवेलेबल, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर आल्सो अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई पेरेंटिंग कोच इज रिक्वायर्ड। थर्ड थिंग इज, बहुत सी चीजें ऐसी है जो पहले शायद तक सही थी, जैसे मैंने टाइम और एनवायरनमेंट चेंज होते हैं तो उसी हिसाब से वो रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई। तो पहले वो सही थी, बट राइट नाउ इट इज अ मिथ। राइट नाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस टाइम। मतलब हर एक जगह पे हर एक चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। दैट्स व्हाई द पेरेंटिंग कोच इज रिक्वायर्ड। फोर्थ थिंग इज, व्हाट आई अंडरस्टूड इज, जैसे आपने बताया कि भाई देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ रिसर्चेस आर देयर। ओके, और एज वेल एज जब कोई पहली बार मदर बनता है या फिर पेरेंट बनते हैं, दोनों के लिए बात इक्वली वो अप्लाई करती है। तो बहुत सारे लोग आसपास के होते हैं उसको कहने वाले। नाउ विच इंफॉर्मेशन टू पिक, which information to we just ignore, and which information we just need to keep in our mind, क्या करना है, that usually people get confused। और उसमें वो काफी मतलब ये रह जाता है कि वो जो बहुत ही क्रिटिकल फेज रहता है 0 to 6 years बच्चे के लिए, बिकॉज एवरी मिनट ही इज बिल्डिंग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन कनेक्शन इन हिज माइंड विच इज ग्रैबिंग एक्चुअली द इंफॉर्मेशन। जो आपने बताया कि भाई आपने जो 2 महीने से जो बुक इंट्रोड्यूस की, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि भाई वो बहुत सारी चीजें ना तभी से उसके माइंड में वो कलेक्ट कर रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें वो पता ही नहीं होती है। सो वी नीड समवन स्पेशली फॉर द न्यू पेरेंट्स हु होल्ड द हैंड्स एंड शो द वे कि भाई इस तरह से आपकी सिचुएशन के लिए सही है, इसलिए पेरेंटिंग को चाहिए। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम फैक्ट्स पे एकदम बात करी है एक्चुअली। तो यही चीज लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि व्हाई अ कोच इज इम्पोर्टेंट। Exactly. And with this I would like to ask you a question that what is the importance, जैसे आपने ये जो बात छेड़ी कि भाई बच्चे के लिए आपने 2 मंथ से आपने बुक्स इंट्रोड्यूस की थी, what was the result? आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है उसमें और दूसरों बच्चों के बीच में? What is the difference? जी, मुझे भी रिसर्च से ही पता चला, और मॉम ब्लॉगर्स और बहुत सारी मेरी कम्युनिटी थी, वहां से ही पता चला कि हाँ, एक 2 महीने का बच्चा क्या चीज हम अगर बुक्स भी बहुत तरीके की होती हैं। तो एट 2 मंथ्स हम ब्लैक एंड व्हाइट हाई कॉन्ट्रास्ट बुक्स यूज करते हैं। ओके, उनसे कुछ नहीं होता, ब्लैक व्हाइट एक बड़े पेपर में एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो उस टाइम पे बच्चा जो है ऑब्जर्व कर रहा है, वो समझ रहा है, उसकी आईज की कोऑर्डिनेशन बन ही रही है, डेवलप ही हो रही है। So slowly, like by the age when I started giving him more and more books, age appropriate books basically, आप 2 महीने के बच्चे को बैठ के पंचतंत्र की स्टोरी नहीं सुना सकते हैं। तो एज अप्रोप्रिएट बुक्स आप अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले उसकी आई कोऑर्डिनेशन, उसका मेंटल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना। एंड जब वो टॉडलर एज में पहुंचता है, 1-1.5 साल की एज में जब वो पहुंचता है, उसकी स्पीच डेवलपमेंट इतना ज्यादा अच्छा होता है इससे, बुक्स इंट्रोड्यूस करने से, क्योंकि वो ग्रैब कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सारे वर्ड सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हो उन्हें। उनका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा। वो
फैंटेसी लैंड में जाके सोचते हैं कि अच्छा, एक मतलब अगर हम बेयर और फॉक्स की स्टोरी सुना रहे हैं, कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं, तो उनका इमेजिनेशन आप उसको ऑयल कर रहे हो, उसको हम्म, फूड दे रहे हो, तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। प्लस सबसे बड़ी बात है बुक रीडिंग के लिए तो, कि अगर बुक रीडिंग की हैबिट आपको अर्ली एज में पड़ गई, सो दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू अ चाइल्ड। ओके, मेरा बच्चा अभी भी ही इज ऑलमोस्ट 4 नाउ, सो इफ आई हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ हिम और मैं अगर उसका कोई कार्टून लगा दूंगी, तो वो पहले बुक मेरे पास लेके आएगा कि मम्मा लेट्स रीड दिस। तो वो उस तरीके का एक बहुत ही अच्छा, आपको आप खुद से प्राउड फील करते हो कि मैंने इतनी अच्छी हैबिट उसे डाली है। बेड टाइम में सोने के पहले 15 मिनट आप एक बुक लेके बैठो बच्चे के साथ, है ना? तो वो हम्म, बॉन्ड जो क्रिएट होता है आपका और बच्चे का, एक बहुत ही अच्छा, एक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स यू कैन गिव टू योर चाइल्ड एट एन अर्ली एज, बुक रीडिंग। सो एग्जैक्टली। दैट इज आई एम अ एविड रीडर माई सेल्फ, और मैं बहुत ही ज्यादा एडवोकेट करती हूँ इस चीज को कि इंट्रोड्यूस बुक्स एट एन अर्ली एज, वंडरफुल। numerous benefits. वंडरफुल। सो वी एट स्पार्टन किड्स विद दिस इंटेंशन ओनली, आपने जो बताया, सो उसके पीछे हम जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं उसके पीछे भी काफी सारी रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उस पर टेस्टिंग भी काफी होती है। सो वी व्हाट यू जस्ट सेड ना, दैट इंट्रोड्यूसिंग अ बुक हाई कॉन्ट्रास्ट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का Hmm. कॉम्बिनेशन। सो देर इज साइंटिफिक, हमारे एक प्रोडक्ट है जो हमने डिजाइन किया है उसके लिए, और उसके पीछे का जो साइंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, दैट देर इज अ साइंस दैट व्हेन द बेबी इज इन द वॉर्म, तो Hmm. उसकी जो बाकी सारी जो सेंसेस है वो डेवलप हो जाती है। ओके, Hmm. बट in that area he is not able to see much because light वहां पे penetrate नहीं कर पाती है, right? Correct. And our eye is only capable to identify the object with the help of the light, right? Okay, so that's why the visual sense is the weakest sense when Hmm. the child is born. Okay, Correct. Correct. तो उसको आपको स्टिमुलेट करने के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट कोई भी चीज आप दिखा सकते हैं। जी वी जी। हैव कम अप विद द आइडिया ऑफ द हाई कॉन्ट्रास्ट फ्लैश कार्ड। ओके, हाँ जो हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैश कार्ड रहता है जो Correct. दिखाता है बच्चे को, और उसका जी। प्रॉपर मेथड रहता है, तो वो हम बताते हैं। बट या द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें जो है, ओके, वो अगर हम बहुत ही अर्ली एज से ही इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आगे जाके 8 साल के बाद बच्चों में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। एंड दैट मेनी ऑफ द पेरेंट्स डजंट नो। उसको ज्यादातर यही लगता है कि भाई, एंड या यहाँ पे एक और चीज भी है जो ज्यादातर गलती कर बैठते हैं पेरेंट्स इस टाइम पे, कि जब छोटे बच्चे होते हैं और वो मतलब उसको कोई चीज अच्छी लगती है, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए कोई भी चीज चाहिए उसको विजुअल स्टिमुलेट करने के लिए। एंड यूजुअली अगर इस छोटी एज में आपने मोबाइल इंट्रोड्यूस कर दिया तो मल्टीपल कलर्स दे आर सीइंग, तो मतलब उसको मजा आ रहा है, बट जो प्रॉपर वे में जो होना चाहिए वो स्टिमुलेशन वो नहीं हो Correct. पा रहा है, एंड अल्टीमेटली दे आर गेटिंग हुक्ड विद द डिजिटल डिवाइसेस, राइट? Absolutely. Absolutely. मतलब यस। मोबाइल हम देखिए इस एज में है कि स्क्रीन और मोबाइल से दूर रखना बहुत मुश्किल है बच्चों को, पर जितना आप डिले कर सके उतना अच्छा है। और प्लस मैं ये नहीं कहती कि स्क्रीन टाइम इज ऑलवेज बैड, एक्चुअली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मतलब मैंने शायद अपने बच्चे को स्क्रीन या टीवी, मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इतना पास से आप देखते हैं, बच्चा इतना पास से देखेगा। जो है आपको दिखाना है आप टीवी पे दिखाओ, थोड़ा सा दूर दिखाओ, एंड ऑलवेज बी केयरफुल कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं। तो कंटेंट रियली मैटर्स, बच्चे सबसे ज्यादा पिक करते हैं वहां से। तो एग्जैक्टली। इतने एजुकेशनल वीडियोस हैं, इतने एजुकेशनल चैनल्स आ गए हैं आजकल, तो जस्ट रिसर्च कि आप क्या दिखा सकते हैं उस एज पे बच्चों को। मतलब मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, किड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, बट mindful screen time is what you can, can do wonders for kids. Exactly. And I would like to share my experience over here, if you allow. Yeah. So, during the COVID time, we were in lockdown, and my kid was, I believe, 4 year old at that time. And during that time, मतलब हम टीवी देखते थे, बाकी तो कुछ करने का था नहीं, घर पे बैठे थे, right? So either we are on the laptop with the Zoom meeting and all these things, or we are, watching the movie or something like that. So at that time, this, the initiative started of Ramayana and the Mahabharata, right? सो वो जब सीरीज, हाँ, मेरे बच्चे ने देखी एंड ही वाज लाइक ऑस्ट्रक, मतलब जैसे उस टाइम पे जब वो पहली बार रिलीज हुई थी और सारे लोग कितने ऑस्ट्रक हो चुके थे, कितनी जबरदस्त, राइट? सो ही
he memorized each and every character. हाँ, राइट, हमें उस कैरेक्टर का नाम याद नहीं है जो बहुत ही शॉर्ट स्पान के लिए आया है, बट ही रिमेम्बर्स, राइट, और उसको yes. बहुत सारी चीजें याद है. सो कहने का मतलब है कि अगर आप कंटेंट का मॉनिटरिंग रखते हैं ना, तो इट विल इनकलकेट सो मेनी गुड थिंग्स, गुड हैबिट्स. राइट नाउ माय सन नोज हु इज कृष्णा, व्हाट आर द गुड थिंग्स ही डिड, पांडवा कौन थे. ही इज राइट नाउ जस्ट 6 years old, एंड इवन दो ही इज नोइंग एवरीथिंग, और वो चाहता है कि वो उसकी तरह बने. इनफैक्ट ही इज आस्किंग मी कि पापा श्री कृष्ण सुदर्शन जो चलाते थे वो कैसे चलाते थे, वो कैसे सबको मैनेज करते थे, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. एंड दिस इज द एज टू आस्क द क्वेश्चन, राइट, 6 year old. सो दैट इज वेयर एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग द क्यूरियोसिटी, जिससे कि वो बहुत ही आगे बढ़ पाए उस डायरेक्शन में, राइट. सो कंटेंट मॉनिटरिंग कि भाई क्या कंटेंट हमारे बच्चे देख रहे हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. उसका मुझे ये एग्जांपल लगा लाइफ, इसलिए आई जस्ट शेयर विद यू. Absolutely. हम अपने बच्चों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट ही करते हैं. तो एट 0 to 5 years of age, इतनी अमेजिंग एज है that they can pick up smallest of the things. आप अभी 0 to 5 years of age को जितना टैप कर सकते हैं, वो आपको बाद में इतने ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देगा that you don't know. Yeah. Actually, one of my spiritual mentor and spiritual guru, actually, he is not no more in the world. With the spirit, he is right now with us. But Rishi Prabhakar ji, he has always said there are only two ways. One is either you put your efforts, your blood and sweat during 0 to 8 years. Okay, he says 0 to 8 years. Okay, and you enjoy the rest of your life. Okay. Or you do your enjoyment during 0 to 8 years and you just keep crying all the time during your whole life. I think he's right. I Yes. am still in the journey, let's see, but yes, I think I totally resonate. Exactly. Yeah, with this I would like to ask you one more question, that you promote the gentle parenting, and also you promote the healthy relationship between the family members, right? Okay, so can you just define what is gentle parenting according to you, as well as how one should do some act on daily basis so that they can empower the relationship between the family members? Sure. So gentle parenting, जैसा मैंने initially आपसे बात किया कि as a parent we don't have to be in a superior position, we don't have to be in a authoritative position कि बच्चे को डांट के मार के ही समझ आएगा. उसको उस टाइम जरूर वो शांत हो जाएगा, वो टैंट्रम्स थ्रो करेगा, वो शांत हो जाएगा कि मम्मा ने डांट दिया है, बट he will be scared of you. ठीक है, अगली टाइम वो कुछ भी करेगा तो वो बहुत स्केर्ड होगा आपसे कि आपसे शेयर नहीं करना चाहता कि मम्मा डांटेंगी, ठीक है, पापा डांटेंगे. आपको ये रिलेशनशिप मेंटेन करना है कि एक कम्युनिकेशन हो आपके और बच्चे के बीच में, वो कुछ भी आके आपसे शेयर कर सके. अगर आपने ये रिलेशनशिप अभी से बनाया तो जब टीन एज में बच्चे पहुंचते हैं, जब उनके पास बहुत सीक्रेट्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत कभी कुछ गलत काम कर भी जाते हैं, उन्हें ये डर नहीं हो कि हमें पेरेंट्स से छुपाना है. उन्हें ये होना चाहिए कि मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, दे विल हेल्प मी. So I am not going to get a scolding, I am not going to get a पिटाई पेरेंट्स से. तो ये this is what gentle parenting is. और अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैं समझ पाई हूँ अभी तक, कि बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है या बच्चा इरिटेट हो रहा है, एंग्री हो रहा है, तो इसलिए नहीं कि वो आपको परेशान करना चाहता है, वो खुद परेशान है कहीं, ठीक है. तो आपको जाके उसके लेवल पे पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है. आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एज पेरेंट्स की भाई चिल्लम चिल्ली हो रही है, स्क्रीमिंग हो रही है, बात नहीं सुन रहा है, लेट हो रहा है, जो भी, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस डेली अपने अंदर इंस्टिल करिए. डीप ब्रीथ तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है एज अ पेरेंट, बट जस्ट गो डाउन टू हिज लेवल, हर लेवल. ओके, जस्ट काम हर डाउन, हिम डाउन, एंड उससे 2 मिनट आप बात करो कि ओके क्या हुआ, मैं सुन रही हूँ, आप किस लिए परेशान हो, क्या परेशान कर रहा है आपको, ठीक है. बच्चा तुरंत काम डाउन हो जाएगा, बच्चा आपसे शेयर करना चाहेगा. बच्चे को भी बच्चा हर चीज समझता है, तो बच्चे को भी ये समझ आएगा कि हाँ मम्मा मुझे सुनना चाहती है, समझना चाहती है, बस मुझे डांट के चुप नहीं कराना चाहती है. तो दिस इज व्हाट जेंटल पेरेंटिंग इज. एक उस मिथ को ब्रेक करना कि भाई पेरेंटिंग मतलब कि मार पिटाई या डांट से ही सब कुछ होगा, वो नहीं होता है. जेंटल पेरेंटिंग आप अगर अपने लाइफ में इंस्टिल कर सकते हैं, और बेस्ट, और एक मतलब सिर्फ मम्मी और बच्चे का या पापा और बच्चे का ही रिलेशनशिप नहीं होता,
जो माँ बाप का आपस में रिलेशनशिप हो जाए, जो पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप है, बच्चा हर एक चीज ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कि पापा मम्मी से कैसे बात कर रहे हैं, मम्मी पापा को कैसे किस तरीके से बात कर रही हैं, एक क्या उनके बीच में क्या रिलेशन है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। आपने आपस में लड़ाई कर ली बट बच्चे के साथ आप ठीक हो, ठीक है, doesn't work, okay, क्योंकि he needs to see how what is the bond between my parents, okay, what is the environment, वो सब समझता है. So that is a kind of a healthy relationship and healthy parenting, positive parenting which you can provide to a child. And बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे ये सब बच्चे के माइंड पे असर करता है. So this is what is gentle parenting. Requires a lot of patience, I know. फ्रस्ट्रेशन भी होती है. अब जब अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है तो थोड़ा सा आप वहां से हट जाओ, बच्चे के सामने से हट जाओ, 10 सेकेंड जाओ बाथरूम में, अपने आप को बंद करो, ब्रीथ, ओके, इट इज डिफिकल्ट बट ब्रीथ, जस्ट टेक एक बार मुंह धो, ठीक है, ऐसे करके फिर कम बैक, यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज आपके एंगर में भी, एंड अ न्यू वे टू डील विद द प्रॉब्लम. Exactly. One of the thing I concluded with this explanation which you just shared, that the most important thing is बच्चे को बच्चे की तरह ना देख के एक एडल्ट है उसी तरह देख के उसको रिस्पेक्ट दीजिए and try to understand what he want to say. Usually what happens, everyone would parents, मतलब usually ऐसा होता है कि parents ना they suppress, like if they don't like what he is doing then they will suppress, they will not try to understand what exactly. But वही चीज अगर हम किसी एडल्ट के सामने है, especially the stranger one, या फिर बॉस और समवन नॉट फ्रॉम द फैमिली, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, हम उससे मैच करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, राइट. अगर यही एटीट्यूड हम बच्चों के साथ रखें, देन आवर पेरेंटिंग जर्नी विल बी एट नेक्स्ट लेवल एज फार एज आई अंडरस्टैंड. वेरी स्मूथ इट विल बी. बिल्कुल, एकदम बात सही है ये. मतलब आप जैसे बहुत छोटी बात है कि जैसे अब बच्चे को खाना खाने का मन नहीं है, या फिर वो बीमार था, तो बीमारी से अगर आप उठते हैं, बीमारी से आपका मन नहीं करता है खाना खाने का, बट आप पेरेंट हैं, आपका जॉब है कि बच्चे को खाना खिलाना है, उसके मुंह में आप एकदम चम्मच को डाल ही देंगे, तो एक इंसान है वो भी, उसका नहीं मन है तो वो कैसे खाएगा. तो अपने आप को उसको भी एक इंसान की तरह समझ के कि जैसा आपका मन करता है, यू कीप योरसेल्फ इन दोस शूज and then understand that okay, maybe he doesn't want to eat, वो ही एक ह्यूमन बॉडी है, भूख लगेगी, वो खाएगा. आपका जॉब वहां टिक नहीं हो जाता कि आपने बच्चे को कुछ तो खिला दिया, हो गया, बट उससे तो आपने उसको एक फूड से भी एक वैसा रिलेशनशिप बन गया उसका कि मुझे नहीं खाना है, और क्यों ऐसे कर रही है मम्मा, क्यों ऐसे कर रहे हैं पापा. So and then that snowballs into a tantrum and frustration and all those things. Yes. Just understand him as a human, as just another human, and then it will be really easy for parents. Wonderful. एक और चीज जो मुझे आप हमारा जो डिस्कशन है उसमें क्लिप हुई वो मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरे भी थॉट उसमें शेयर करना चाहूंगा, दैट यू जस्ट शेयर्ड कि भाई मैंने काफी बार देखा है, हमारी बात हुई कि भाई बच्चे को मार पिटाई होती है, मतलब पेरेंट्स करते हैं, और वो सारी चीजों के बारे में हमारी जो बात हुई उसको मैं जरा सा यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा. काफी पेरेंट्स जो काफी हमारे एज के जो अभी पेरेंट्स हैं, मतलब दे यूज्ड टू शो द प्राउड कि हमें तो पढ़ती थी और सब कुछ ठीक हो जाता था, राइट, ओके, हमें मार पिटाई होती थी और सब कुछ ठीक हो जाता था. तो कहीं पे लोगों ने ये समझ लिया है कि भाई यही सही तरीका है. वो उस टाइम पे सही था. क्यों, मैं बताता हूं मुझे क्या लगता है, क्योंकि उस टाइम पे इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं था, इतना सारा इन्फ्लुएंस नहीं था कि आप देख पाओ कि भाई दूसरे की फैमिली में क्या हो रहा है, दूसरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से वहां पे हो रहा है. एंड यूजुअली सब यही प्रिटेंड करते थे कि भाई मम्मी पापा जो बोलते हैं वही सही है और वही होता था. So everyone was having their own space और सबको यही सही लगता था, right? But right now, if you are trying to do that, then your kid is having so many resources कि जहां से वो information ले सकता है कि भाई दूसरे बच्चों के साथ उसके parents क्या कर रहे हैं, right? Yes. Well, it might be the TV, it might be your mobile phone, YouTube channel, Facebook, Instagram, so many things are there. Okay, as well as the other people, okay, surrounding में जो आसपास के वो भी मतलब इतना show off बढ़ गया है कि भाई what they are doing. So the same thing, okay, they will be getting कि भाई हाँ दूसरों बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता but मेरे साथ हो रहा है. So it is something kind of injustice to me, जो आप नहीं सोचते थे जब आपके साथ होता था तब, right? ये point भी है. हाँ जी,
So this turns into anger and ultimately they will be be rebellious behavior जो होगा वो टीनेज में जो देखने को मिलता है वो अभी तो आपको रिपेल नहीं कर सकते बट वो अल्टीमेटली टीनेज में जाके हमें दिखता है राइट। तो इस पॉइंट पे मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि आप जैसे कह रहे हैं कि उस टाइम पे शायद ये चीज सही थी, अगर मार पिटाई से काम होता था, सही तो शायद उस टाइम पे भी नहीं थी, इसलिए क्योंकि अगर कोई समवन जिसको भाई अपने पेरेंट्स से खूब डांट पड़ी है, खूब मार पड़ी है कि कुछ सुधारने के लिए या जो भी, और अब वो कहता है कि अरे हम तो ठीक ही निकल गए, आप उसके अंदर उसके मेंटल हेल्थ में जाके आप अगर देख पाए या फिर उससे पूछे या जो भी, ही विल नॉट बी एबल टू शेयर हिज फीलिंग्स। वो अपने पेरेंट्स से तो कभी नहीं शेयर कर सकते अपनी फीलिंग्स, ठीक है। और प्लस जो उन्होंने देखा होगा उस टाइम पे वो रेप्लिकेट करेंगे अपने बच्चों के लिए, बच्चों पे वो रेप्लिकेट करेंगे अपने फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कभी देखा हो कि उनके पापा कैसे उनकी मम्मी के साथ बिहेव करते होंगे, जस्ट हाइपोथेटिकल थिंग कि भाई चिल्लाते होंगे या कोई अब्यूज करते होंगे, उन्होंने यही देखा, वो वही चीज रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए। एक हो सकता है एक अब्यूसिव माहौल हो, तो सही तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट टाइप की चीज जो मार पिटाई वाली चीज होती है वो तो कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि आपको उस टाइम लगता है कि हाँ हम भाई अच्छी जॉब कर रहे हैं, एमबीए कर लिया और अच्छा पैसा कमा रहे तो हम ठीक निकल गए, बट इंटरनली मेंटली आपको कहाँ वो चीज इफेक्ट करी है वो आपके डेली लाइफ में आप ही को पता है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं। सो ये वाली चीज। या सो आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, मैंने मतलब मेरा मतलब ये नहीं था कि वो सही है, बट मेरा मतलब ये था कि वो ये समझते हैं कि इट इज द वे कि काम बन जाता है राइट, उनके लिए वो चीज सही। हाँ, उसको ये लगता है कि भाई इट इज द वे थ्रू विच द वर्क कैन बी डन, but it is not actually right. Right? Okay, wonderful. Yeah, we are having a wonderful conversation, but I would like to conclude this interview with one last question. Okay, as a okay, not one last, two last questions. I'm sorry. One thing is, what is your learning? You are doing a lot of one-to-one coaching with the parents and all these things, right? Okay, so what is your learning as a parent? आप कोच के हिसाब से आपको क्या एक लर्निंग मिली अपने बहुत सारे आपके जो कोची है उसके साथ बात करते हुए, क्या आपकी लर्निंग रही एज ए कोच? एंड सेकंड थिंग, व्हाट डिड यू फाइंड आउट समथिंग न्यू अबाउट पेरेंटिंग ड्यूरिंग दिस जर्नी? या सो दिस आर द टू थिंग्स आई वुड लाइक टू नो। श्योर। तो एज अ कोच जो मैंने बहुत सारे न्यू पेरेंट्स से बात करी है, न्यू मदर्स से बात करी है, एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने नोट करी मोस्टली न्यू मदर्स के लिए कि एक चीज है, एक तो जब वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ओके, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक यही चीज उनके साथ होती है कि व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स वांट टू टेक ओवर, ठीक है, उनके बच्चे की डेवलपमेंट में या कुछ भी करने में। अब ग्रैंड पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस जैसा था वैसा था, ओके, आप उनका फीडिंग स्टार्ट हुआ है 6 मंथ 7 मंथ्स में, सॉलिड्स खाने पे वो बिस्किट्स दे रहे हैं, चाय में बिस्किट डुबा के दे देते हैं 6-7 महीने के बच्चे को, जो कि सुपर हार्मफुल है। बट न्यू मदर्स आर नॉट एबल टू से, ओके, वो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट कि मम्मी ये सही नहीं है, ओके, प्लीज आप ये मत करिए, ठीक है। तो वो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान है न्यू पेरेंट्स इस चीज पे, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स का इट्स नॉट कि वो आपके अपने ग्रैंड सन्स के लिए, डॉटर्स के लिए कुछ गलत चाहते हैं, बट वो एक तरीके से डिफेंसिव थोड़ा हो जाते हैं कि भाई ये बच्चे कल के बच्चे हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि भाई बच्चों को कैसे पालना है, हमने भी तुम्हें बिस्किट खिला खिला के बड़ा कर दिया है। बट तो एक ये वाली चीज है जो इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जनरेशन। या जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमाटिक थिंग्स जो हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ा कम होता है बिकॉज डे टू डे आपकी इंटरफेरेंस नहीं होती, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हो चीजें, बट जॉइंट फैमिलीज में ये काफी प्रॉब्लमैटिक मैंने चीज देखी, तो ये वाला प्रॉब्लम है। Another thing is venting out, new mothers really want to vent out, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं न्यू मदर्स को, स्पेशली उनकी फिजिकली भी हेल्थ डेवलप नहीं हुई है, वापस ठीक नहीं हुई है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग की अलग प्रॉब्लम्स हैं, और देन सोसाइटी की अलग एक्सपेक्टेशंस है उनसे,
मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती है न्यू मदर्स। सो वो किसी को अपने बस वेंट आउट करना चाहते हैं, वो फैमिली में नहीं कर सकते हैं, किसी को, अपने हस्बैंड्स को भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज समवेयर और दी अदर अगर उनके हस्बैंड्स के पेरेंट्स के बारे में ही कुछ उनसे बात करनी है, तो हस्बैंड्स ऑब्वियसली कोई नहीं सुनना चाहता अपने पेरेंट्स के बारे में। So basically, when I do one-to-one coaching, so I also give one-to-one parenting sessions, mostly to new mothers, new parents. So I just become their ears, okay, to just listen. You want to vent out, you talk to me, okay? आपको मैं advice तो दूंगी, but अगर आप, because venting out से भी बहुत relief होता है, ठीक है? आप बस कोई सुन ले आपकी बात, ठीक है? कोई advice ना दे, कोई judgment नहीं हो, no judgment calls. तो वो भी I do, okay? I just listen to you because I know, as I have been a mother, I know how difficult that the first few months are. तो ये मैंने सीखा as a parenting coach कि very important, they really need this platform. Or sorry, what was the second question? Yeah, the second was, what is your bit learning as a parent? मतलब this one-to-one Every coaching. day is a learning. मैं एक कोई point out ही नहीं कर सकती. So almost 4 years हो गए हैं मुझे as a mother, and every day has been a learning. तो अभी तक मैंने जो भी इस सेशन में बोला वो मेरी learning ही है कि आप बच्चे को खाना खिलाने से, बुक्स पढ़ाने से, उसको उसके मेंटल हेल्थ को समझने से, मेंटल लेवल पे जाके बात करने से, जेंटल पेरेंटिंग, सो एवरीथिंग इज अ लर्निंग फॉर मी। एंड वन थिंग, अगर मेरे को वन सेंटेंस में इसको बोलना है तो आई विल जस्ट से कि understand each other, okay? As a parent, understand your child and not be authoritative, okay? It will simplify your parenting journey. Okay. And last thing is, you are also coming up with one of the book जिसमें कि आप पेरेंटिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स काफी, मतलब जो इम्प्लीमेंट कर सके ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप उसमें कर रही है, उसको पब्लिश करने वाली है। सो आई वुड लाइक नो व्हाट एग्जैक्टली द आइडिया बिहाइंड दैट बुक, मतलब वो आइडिया कहाँ से आया आपको, एंड वो बुक में क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आइडिया वो मेरी जर्नी है, एक तरीके से आप ये समझिए कि एक मदर की जर्नी है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या, और एक तरीके से वो कोई ज्ञान बांटने वाली बुक नहीं है, ठीक है? देयर इज अ लॉट ऑफ, कोई फिक्शनल बुक नहीं है, एक हैंडबुक की तरह है। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, कि आप पोस्टपार्टम है, आपका डिलीवरी हो गया है, तो उस टाइम पे आप क्या क्या फेस कर सकते हैं, जो आपको नहीं पता है, आप क्या क्या फेस कर सकते हैं, उसको कैसे डील करना है। पोस्टपार्टम के बाद आपका बच्चा 6 मंथ्स का हो गया है, आप उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो होगी, और उसे कैसे डील करना है। सो एज वाइज डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट जर्नीज, कि आप बिकॉज पीपल वांट टू नो द प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन चाहिए, ये चाहिए उन्हें, ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए होता है, बिकॉज ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, तो दे वांट कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर मेरे को पॉटी ट्रेन करना है बच्चे को तो मैं क्या करूं, ठीक है? तो उसका सोल्यूशन, सो इस तरीके से मैं एक बुक बना रही हूँ, सो दैट दे जस्ट नीड टू जस्ट ओपन अप, ओके, सर्च अ टॉपिक, ओके ये है, अच्छा क्या कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। Wonderful. What a great idea. Actually, we also, believe in, to the point tips and tricks, जिससे कि parenting journey आपकी, काफी अच्छी हो सके। एंड हमारा जो वर्कशॉप हम करते हैं, every fortnight we are doing this workshop parenting के रिलेटेड, जिसमें हम एक स्पेशल ई बुक बना के भी देते हैं, जो टॉपिक है उसके रिलेटेड, जिसमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स हम पेरेंट्स को देते हैं। सो या we are resonating with your idea, and I would like to know that when it is releasing and where people can get this book, मतलब अगर आप प्लान कर रही हैं तो। I will let you know. अभी तो it's still in construction, under construction, but we will definitely share it. So on my Instagram page, I have a community of WhatsApp of around 250 moms, 250 plus moms. And then absolutely your platform is there. I will definitely reach out to you to go to larger audience. 101%. Yeah, Kirti, so it was a wonderful session. Thank you very much for all the knowledge. With this, I would like to invite you कि आप हमारी जो ऑडियंस है, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, उसको रीच आउट करना है आपको, तो कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक्सप्लोर विद मॉम, आई बिलीव इन द इंस्टाग्राम, राइट? मॉम इज माय इंस्टाग्राम पेज, आप अगर उसे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं तो
they will Definitely, we will. But you can, share a shout out. अभी अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं आपके हैंडल्स या फिर कुछ भी, जिससे कि हमारे जो ऑडियंस है वो में आप तक पहुंच पाए. डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा ही रहेगा. जी, sure. So I am available on Instagram. It's the page is called Explore with Mommy, and you can DM me about any problem, any discussion. कोई छोटा से छोटा discussion करना है तो उसके लिए. Plus, I conduct parenting workshops on different topics. So currently, these workshops they are paid, non-paid both. So and I have a WhatsApp group as well. If parents want to join it, I can send you the link for that. WhatsApp group का chat का link and then you can put it in the description. And rest I am always available on my DM. सबसे ज़्यादा easily मैं DMs पे available हूँ, so we can talk. Okay, thank you very much, Kirti. Have a nice time. Wonderful day. Thank you so much, Kalpi. This was a really nice session. Thank you. Okay, bye Have a bye. good day. Bye. You too.